زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور جسم میں ہمیشہ 20 سال جیسی طاقت رہتی ہے۔ روزانہ ایک گاجر کھایا کرو، بدن میں نیا خون بنے گا۔ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی تمام بیماریوں اور شوگر سے دور رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، لہٰذا اس سے بچے۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو رزق تمہارے مقدر میں ہے وہ چاہے پہاڑوں میں ہی کیوں نہ چھپا ہوا ہو، تمہیں مل کر رہے گا۔ لیکن اگر کوئی چیز تمہارے مقدر میں نہیں، وہ چاہے تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، تم کو نہیں مل سکتی۔ اگر ہاتھوں میں میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسل لیں، میل دور ہو جائے گی۔ پیسی ہوئی کلونجی اور پیسی ہوئی سونف دونوں کو پانی میں ابال کر پی لیں، اللہ نے چاہا تو شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا، اور اس کے علاوہ پیٹ کی چربی بھی ختم ہو جائے گی۔ آب زمزم وہ پانی ہے کہ اس پانی کو جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے تو وہ مقصد ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ روٹی کو اگر چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ بدن کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سونے سے پہلے صرف ایک دانہ سونف کا کھایا کرو۔ رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتظام کریں، کیونکہ دوسرے بلب آپ کی نظر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ سرسوں کے تیل کو پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ فوراً دور ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو بخار ہو تو سرسوں کے تیل سے پنڈلیوں کی مالش کریں، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ کھانے میں بالیاں کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ سونے سے پہلے زیادہ کچھ نہیں، بس نیم گرم پانی پی جایا کرو، گردے صاف ہو جائیں گے اور جسم سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر الرجی یا سینے پر ریشہ ہو تو 4 لونگ اور ادرک کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی صرف 1 مہینے میں پوری ہو جائے گی۔ فارمی مرغی زیادہ کھانے سے بال جلدی گر جاتے ہیں اور الرجی کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے صرف بدن ہی کمزور نہیں ہوتا بلکہ برین اسٹروک بھی ہو جاتا ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ بے اولاد کے لیے جو چیز گھر میں لاؤ تو پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو دو۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے بھی ہوتے ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کدو کھانے سے آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے چھاتی صاف رہتی ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور ملاقات سے نہیں بنتا بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتا ہے۔ کیلا انسان کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے اور جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ فالسے کا شربت آپ کے جگر کو تندرست کر دیتا ہے، گرمی کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ جو بھی دوائی زبان کو کڑوی لگے تو جان لو کہ اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے بہت فائدے موجود ہیں۔ چھوٹے بچوں کو چائے کا عادی ہرگز نہ بنائیں، ورنہ چھوٹی ہی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی پھینکنے کی بجائے ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھوئیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھا لینے سے بدن کی فالتو چربی کم ہو جاتی ہے۔ نابینا یعنی اندھے لوگوں کو عام انسان کی طرح خواب نہیں آتے۔ ٹھنڈا کھانا گرم کر کے کھانے کی عادت معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ مرغی کے پنجے کھا لینے سے آپ کو جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کبھی بھی اپنے نصیب کی شکایت نہ کرنا، کیونکہ تم اتنے سمجھدار نہیں کہ رب کے فیصلوں کو جان سکو۔ چاول کھانے کے بعد فوراً دودھ یا پانی استعمال نہ کریں، ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ دیسی گھی شکر کے ساتھ استعمال کرو، یہ پٹھوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ شہد اور نمک ملا کر دانت صاف کرنے سے آپ کے دانت چمک جائیں گے۔ جن لوگوں کی سننے کی حس بہت اچھی ہوتی ہے ان کا دماغ بھی ذہین اور تیز ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دیسی گھی ہمارے ٹیشوز کو چکنائی فراہم کرتا ہے تاکہ ان میں لچک پیدا ہو اور امیونٹی سسٹم بہتر ہو سکے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھائیں، ورنہ اس سے پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر سانس کی تکلیف کا مسئلہ ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کیا کرو۔ روزانہ ایک ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیا کرو، اس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پیدل واک کرنے سے پہلے نیم گرم پانی پی لو، اس سے کمزوری نہیں ہوگی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک لہسن کھا لیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہو جائے گا۔ چہرے پر فالتو چربی کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے کا رس لگایا کریں۔ اگر گھر میں رزق کی تنگی ہو جائے تو یہ کام شروع کر دیں کہ صبح اٹھتے ہی سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے،
नींबू और पुदीने का रस मिलाकर पीने से हाजमा अच्छा हो जाता है। रिश्तों की बुनियाद एहसास करना है, और एहसास वही इंसान कर सकता है जो खुद गर्ज नहीं होता। अगर मैदे की जलन का मसला हो तो 1 गिलास दूध में खजूर डालकर पी लिया करो। अल्लाह ने चाहा तो मैदे की जलन फौरन दूर हो जाएगी। कच्चा अमरूद खाने से सुस्ती दूर हो जाती है। दही में सिर्फ 2 दाने बादाम पीसकर और इस पर घोल मिलाकर इस्तेमाल करने से बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। बार बार पेशाब आने का मसला हो तो बार बार पेशाब आने का मसला हल हो जाएगा। मैदा भी साफ हो जाएगा और इसके अलावा चेहरा चमकने लग जाएगा। माहिरीन बयान करते हैं कि जिस औरत की टांगों पर बाल ज्यादा होते हैं तो अक्सर ऐसी औरत पहली बेटी जन्म लेती है। 1 हफ्ते 3 दाने इंजीर भिगोकर सुबह खाली पेट खा लें और पानी पी लें। ऐसा करने से बाल मजबूत और घने हो जाएंगे। जिसको नजर की कमजोरी हो जाए वो आंस ज्यादा खाया करें, इससे नजर तेज हो जाएगी। जिन लोगों की नजर कमजोर है रोजाना 1 सब्ज इलायची, 2 काली मिर्चें, 1 चम्मच सौंफ, 3 से 4 बादाम आधे घंटे के लिए मुंह में रखकर चबाएं। 1 हफ्ता रोजाना ऐसा करने से नजर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर्दियों में अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है और नाक और गला खराब हो जाता है। मुलट्ठी पीस कर थोड़ी काली मिर्च पीस कर इस 1 चम्मच शहद में मिलाकर चाट लिया करें। सोने से पहले इस घोल का छिलका इस्तेमाल किया करो या नीम गर्म पानी पी लिया करो। इससे गुर्दों की सफाई हो जाती है। अगर सुबह सवेरे उठते ही आपका गला और नाक बंद होता है तो अदरक का कहवा बनाकर पिया करो। सांस के मरीजों के लिए दही का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुज़र है। घर में बिल्लियां पालने से चूहों से निजात मिलती है और बिल्ली को घर में पालना अच्छा समझा जाता है। खाने से कबल 1 सेब खा लिया करो। दिमाग की कमजोरी दूर होगी, याददाश्त तेज होगी। सेब खाने का सही वक्त सुबह का होता है। सर्दियों में बच्चों को सांस की तंगी के वक्त ठंडा शहद ना दें। अगर देना चाहते हैं तो पहले हल्का सा गर्म करें और फिर उंगली के साथ चटाएं। सेब का मुरब्बा खाने से दिलो दिमाग को ताकत मिलती है। हल्दी को दूध में या फिर शहद में मिलाकर खाने से आराम मिलता है। जिन लोगों के चेहरे पर ऑयल रहता है वो चावल का आटा इस्तेमाल किया करें। सौंफ और मिश्री दोनों को हम वजन लेकर इनका पाउडर बनाएं और घर में रखें। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम के खाने के बाद इस्तेमाल किया करें। महीने में नजर उकाब जैसी तेज हो जाएगी। खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। छोटी इलायची मुंह में लौंग पैदा करती है, मैदे की जलन खत्म करती है। इसके अलावा सांस के लिए बहुत मुफीद है। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से दांत साफ हो जाते हैं, दांतों से कीड़े मर जाते हैं। अगर आप अपने मसाने को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो कच्चा प्याज ज्यादा इस्तेमाल किया करें। बच्चे दुबले पतले और कमजोर हो तो उन्हें दही में केला मिलाकर खिलाने से वो मोटे ताजे और हट्टे कट्टे हो जाते हैं। याद रहिए केला खिलाने के बाद ठंडा पानी से परहेज करें क्योंकि इससे रेशा पैदा होता है। अगर सांस लेने में तकलीफ हो तो या दमा का मर्ज हो तो बांस का मुरब्बा खाएं, आराम आ जाता है। 1 माह खाने से मर्ज जाता रहेगा। खाने पीने की अशिया ज्यादा गर्म हो तो प्लास्टिक के बर्तन में मत डालें, इससे कैंसर होने का खतरा होता है। ब्लैक हेड्स विटामिन ए के इस्तेमाल से कम हो जाते हैं। अगर आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं तो समझ जाएं कि आपका दिमाग कमजोर है। रोजाना चाय ज्यादा पीने से मोटापा जल्दी आ जाता है और ज्यादा चाय भूख की कमी का बायस बनती है। शुगर की बीमारी में कलवंजी बड़ी अहमियत की हामिल है। तकरीबन 4 हफ्तों तक सिर्फ 6 दाने फजर के वक्त और इशा के वक्त पानी के साथ निकलें। इंशाल्लाह शुगर जैसी भी हो खत्म हो जाएगी। सफेद आटा मैदे के मसले बढ़ाता है और आंतों की बीमारियों का बायस बनता है। जो इलायची वाला दूध पीता है उसकी मौत कभी भी किसी ला इलाज बीमारी की वजह से नहीं होती। अगर दरख्त फल ना दे रहा हो तो अनार का रस इसकी जड़ों में डालने से दरख्त फल देना शुरू कर देगा। खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक सोना नहीं चाहिए, इससे पेट की बीमारियां नहीं आती। अगर खाना खाने के फौरी बाद सो जाओगे तो बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी और मोटापा आप पर हावी हो जाएगा। अगर आपको मैदे की तेजाबियत का मसला है तो आप अचार खाने से गुरेज किया करें। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम करें, काली मिर्च को ज्यादा तरजीह दें। जो औरतें रात को देर से सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं और जो रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर किसी भी ऑयल से मसाज कर लेती हैं तो उनके चेहरे पर झुर्रियां कभी नहीं आती और उनकी जिल्द हमेशा तरोताजा और जवान रहती है। जबड़ों में दर्द रहता हो तो मुलट्ठी खाया करें। मुलट्ठी चबाने से पीले दांत भी सफेद होना शुरू हो जाएंगे। जिस्म से बदबू ना जाती हो तो पानी के अंदर अर्के गुलाब शामिल करके नहाया करो।
चेहरे की चिकनाहट खत्म करने के लिए चावलों वाले पानी से चेहरा धो लें। नारियल तेल इस्तेमाल करने से बंदे के अंदर कमजोरी और सुस्ती खत्म हो जाती है। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद कौर तुम्हे के बीच सिर्फ एक बीज चबाने से भूख में शिद्दत आएगी, मर्दाना कमजोरी दूर होगी, रंग निखर आएगा। रात को ज्यादा सोचने से नींद की सलाहियत कम होती है। जिन लोगों को नींद ना आ रही हो वो सिर्फ 5 मिनट में सो जाएंगे। तरीका सिर्फ अपने अंदर झांकने से, यानी सिर्फ 5 मिनट ये सोचना है मेरा दिल कैसे काम कर रहा है, या मेरा किडनी किस तरह काम करता है, या मेरे लंग्स किस तरह काम करते हैं। सुबह निहार मुंह जैसे ही उठे तो सबसे पहले अपना बासी थूक यानी कुली किए बगैर अपना लवाब जहाँ जहाँ दाने हैं वहाँ पर लगाएं। 3 से 4 दिनों में इंशाल्लाह दाने बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। एक दफा जरूर आजमाएं, इससे आपका चेहरा साफ हो जाएगा। जो लोग नींद कम लेते हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। जो लोग चिड़चिड़े होते हैं इनमें आयरन की कमी होती है। जिन बच्चों का रंग पीला है यानी खून की कमी है वो दूध में शरबत फौलाद 2-2 चम्मच मिलाकर पिएं। 1 माह में खून की कमी दूर हो जाएगी। जो दूध को नीम गर्म करके पीता है उसकी हड्डियां ऊंट की हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। अपनी आंखों को हमेशा बेहतर रखना है तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश कर लिया करो। अपने दिमाग को अगर बेहतर रखना है तो 8 घंटे की नींद जरूर पूरी किया करें। अगर आप अपने मैदे को बेहतर रखना चाहते हैं तो ठंडी चीजों से परहेज किया करें। कच्चे चावल कभी नहीं खाने चाहिए, इससे गुर्दों में पथरी भी हो सकती है। चॉकलेट खाने से खांसी में आराम मिलता है। शाम के वक्त प्याज खाने से मैदा कमजोर होता है। अगर आप सोने से कबल शहद चाट लें तो आपको नींद बेहतरीन आएगी। अगर आप सुबह उठते ही शहद चाट लें तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, थकावट भी नहीं होगी। 2 फल ऐसे हैं जो किसी भी औरत की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं, माल्टा और लीची। इन दोनों फलों से औरत जवान होने लगती है और खूबसूरत हो जाती है। अगर किसी बंदे की नजर कमजोर है इसे चाहिए कि सुबह सुबह नंगे पांव घास पर चले। कुछ दिनों में फर्क महसूस होने लगेगा। अंगूर खाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है और बलगम भी सारी बाहर आ जाती है। ताज़ा नीम गर्म दूध चेहरे पर मसल देने से चेहरे की रंगत निखर आती है। जिसका गला बैठ जाए वो सौंफ के दानों का जूस ले, गला उसी वक्त खुल जाएगा। करेले की सब्जी का पानी चेहरे पर लगा दो, 2 हफ्तों में चेहरा सफेद चमकदार और गोरा हो जाएगा। नहाने के फौरी बाद कान के पीछे तेल लगाने से दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है। ठंडी बलाई का चेहरे पर मसाज करना चेहरे के दानों से पाक करता है। ज्यादा अंडा खाने से सांस की तंगी हो जाती है और दमाग पैदा करता है और एलर्जी के मरीजों के लिए मुज़र सेहत है। खाली पेट नहा लेने से जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है और इंसान तंदुरुस्त रहता है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं ऐसे बच्चों की याददाश्त तेज होती है और वो बच्चे बड़े होकर भी ज़हीन बनते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज घी मत खाएं बल्कि ऑयल का इस्तेमाल किया करें। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो भी इससे ठीक हो जाएगा। जल्दी आप पर बुढ़ापा नहीं आएगा। कमजोर हाजमे वाले अफराद के लिए केला बहुत नुकसानदेह है और केला बलगम पैदा करता है। अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा हाई है तो इससे शुगर भी कंट्रोल हो जाती है। पानी में 2 चीजें मिलाकर 2 मिनट के लिए पकाएं। जब इनका कहवा बनकर तैयार हो जाए आप छान कर पी लेना, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सौंफ और कलवंजी का कहवा बनाकर पीजिए। अगर सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगे तो अदरक वाली चाय बनाकर पी लिया करें। जो लोग चाहते हैं कि इनका चेहरा तरोताज़ा और बारौनक नजर आए तो वो टमाटर का रस अपने चेहरे पर लगा लिया करें। खाने के बाद गुलकंद का इस्तेमाल करने से आपकी जिल्द नहीं लटकेगी। कमर का दर्द हो तो सोने से कबल कुछ देर अपनी टांगे ऊपर की जानिब कर लेनी चाहिए, इससे कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लेने से बुढ़ापे में भी घुटनों में दर्द की तकलीफ नहीं होगी। जिन औरतों की स्किन ऑयली हो उन्हें किसी भी ऑयल से मसाज नहीं करना चाहिए बल्कि सिर्फ रोज वाटर ही अपने चेहरे पर लगा लेना चाहिए। इससे इनकी स्किन को अच्छा मॉइस्चराइजर मिलेगा। गाजर का मुरब्बा खाने से दिल को ताकत मिलती है और आंखों की रोशनी भी तेज होती है। सोते वक्त आंखों से अगर पानी आने लगे तो समझ जाएं कि आपका दिमाग कमजोर है। अंजीर खाने से वजन कम होता है, शुगर का लेवल कम होता है। इसके अलावा ये पेट और कब्ज की बीमारी से भी निजात देने में बहुत ही मददगार है। मछली का इस्तेमाल दिल के अमराज
سے بچاتا ہے۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو اس سے گردوں کی پتھری نکل جاتی ہے۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں۔ بڑھاپے میں بھی جوڑ ٹانگیں مضبوط رکھنی ہے تو اخروٹ لازمی کھاؤ۔ سوکھی دھنیا کی پھکی بنا کر چاڑ لینے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پتے کی پتھری ہونے کی صورت میں گاجر اور اس کے سلاد پتوں کا رس پیو، اس سے فائدہ ہوگا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً پانی کا استعمال زیادہ کر دیں۔ ماش کی دال کھانے میں لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اپنے بستر پر ٹیک لگا کر کھانا کھاتے وقت گریز کیا کرو، اس سے معدے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نہاتے وقت اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا مثانہ کمزور ہے۔